ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एस्टिमेशन से रिलेटेड है। और एस्टिमेशन में वी विल डिस्कस द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर वन पॉपुलेशन मीन व्हेन सिग्मा नोन। एस्टिमेशन से पहले हम लास्ट टाइम का जो डिस्कशन कर चुके हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू सैम्पलिंग। ओके, the purpose of sampling is to draw conclusion about population with the help of samples. So uh, now whenever we have a samples, the next task is to again draw the information from those samples related to population. Okay, so estimation means we need to find out the value of the population parameter. Okay, the estimation is nothing but to estimate the value of the population parameter, whether the parameter in terms of mean, whether the parameters in terms of standard deviation or proportion or any other properties related to population. We need to estimate those things. Now there are two types of estimation. The one is called point estimation and the other one is called interval estimation. So we will discuss in this lecture related to these two types of estimation, the point and the interval estimation. Okay, so starting with the point estimation, one way to obtain information about a population mean without taking a census is to estimate it by a sample mean. Okay, so the point estimate of a parameter is the value of a statistics used to estimate the parameter. A statistics is called an unbiased estimator of a parameter if the mean of all its possible values equal the parameter. Otherwise the statistics is called biased estimator of the parameter. Okay, we learned that the mean of the sample mean equals the population mean. In other words, and on average the sample mean equal the population mean. For this reason the sample mean is called an unbiased estimator of the population mean. तो क्या बात समझ आई है? द पॉइंट एस्टिमेट का मतलब क्या है कि आप जो है वो पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करें किसके ज़रिए? विद द हेल्प ऑफ सैम्पल मीन. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप यू हैव अ सैम्पल मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन. ठीक है, तो व्हाट इज़ कॉल्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर के मीन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़. ठीक है, मीन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ यानी कि जितने भी पॉसिबल सैम्पल्स हैं उन सब के जो मीन होगा, यानी हर सैम्पल का एक एक मीन है, तो ऑल पॉसिबल सैम्पल्स का जो मीन कैलकुलेट होगा, दैट मीन वुड बी इक्वल्स टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट इज़ कॉल्ड अनबायस्ड एस्टिमेटर. So for this reason we always assume that population mean is unbiased estimator of the sample mean is the unbiased estimator of the population mean. Okay, so whenever we deal with the point estimate we actually consider only a value of a sample and we equate that value of the sample with the population mean. So there is chances that that value is actually truly represent the population or not. Okay, तो पॉइंट एस्टिमेट में अगर आप सिंपल एक सैम्पल का मीन ले लें और उसको एज अ पॉइंट एस्टिमेट आप ले लें, तो देयर माइट बी चांसेस कि वो जो है वो आपका जो एक्चुअल पॉपुलेशन मीन है वो उससे डेविएट करे. ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी यूज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल इंस्टीड ऑफ पॉइंट एस्टिमेट कि हम पॉइंट एस्टिमेट में चांसेस ऑफ एरर जो है वो हो सकता है लाजमी, तो सी बात है. सो दैट इज़ वाई वी यूज़ द interval estimation as well. So the interval estimate is what? It is nothing but when we deal with the
confidence interval estimate, sample mean is usually not equal to the population mean. Generally, there is sampling error. Therefore, we should accompany any point estimate of mu with information that indicates the accuracy of that estimate. This information is called a confidence interval estimate. तो हम क्या करते हैं कि इंटरवल एस्टिमेट की पॉइंट एस्टिमेट की बजाय, तो क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट में एक जो पॉइंट एस्टिमेट का मतलब एक सिंगल वैल्यू और आपकी पॉपुलेशन की जो पैरामीटर है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस कि एक पॉइंट पे यू हैव ऑल पॉसिबल सैम्पल्स मीन, सारे पॉसिबल सैम्पल मीन्स का जो मीन होगा दैट इज़ द अनबायस्ड एस्टिमेटर. लेकिन अगर आप एक सिंगल सैम्पल मीन की बात करेंगे तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक सिंगल सैम्पल मीन is actually truly depicting the population mean. So there must be some sampling error, and that sampling for that sampling error reason, what we do, we actually find out a interval. ठीक है, एक ऐसा इंटरवल जिसमें कि वो सैम्पलिंग एरर को इनकॉर्पोरेट करे. ठीक है, तो हम ये फिर आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम एस्टिमेट करते हैं. तो पॉइंट एस्टिमेट पहले देख लेते हैं. पॉइंट एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन मीन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ न्यू मोबाइल होम्स का एक ये डेटा है, यूएस सेंसस ब्यूरो में पब्लिश हुआ है. एनुअल प्राइस फिगर्स फॉर न्यू मोबाइल होम इन मैन्युफैक्चर्ड हाउसिंग स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, द फिगर आर ऑब्टेन फ्रॉम सैम्पलिंग नॉट फ्रॉम अ सेंसस. ठीक है, ये 36 जो है वो रैंडमली न्यू मोबाइल होम, जैसे मोबाइल होम्स आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह के 36 जो है वो उस तरह के मोबाइल होम्स का डेटा है. और ये फॉर एग्जांपल 67.8 जो ना वो इन $1,000 में है. तो इसका मतलब $67,800 का ये एक होम है, $68,400 का दूसरा है, 59.2 1000, 56.9,000 एंड सो ऑन. तो इन $1,000 में ये डेटा हमारे पास मौजूद है. और शोन इन द टेबल, यूज द डेटा टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन प्राइस म्यू ऑफ ऑल न्यू मोबाइल होम. यानी ऑन द बेसिस ऑफ दिस 36 मोबाइल होम्स हमने क्या करना है, हम एक एस्टिमेट दे रहे हैं किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए. ठीक है, यानी पॉपुलेशन जो कि कितने का है, वी डोंट नो कि पॉपुलेशन साइज कितनी है, but on the basis of samples, not the census. census का मतलब क्या है कि आप सारे जितने भी यूएस में मोबाइल होम हैं उन सब का जो है वो आप क्या करें, आप उनकी जो ना वो जो एनुअल प्राइस है वो फाइंड आउट करें और फिर उसका एक मीन कैलकुलेट करें. सो दैट वुड बी द ट्रू पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 36 सैम्पल्स से डेटा लेके उसको फिर हम जो है वो हम क्या करेंगे, उसको एस्टिमेट करेंगे उस डेटा से. क्या चीज़ एस्टिमेट करेंगे, पॉपुलेशन का जो है वो मोबाइल होम के जितने यूएस में जितने मोबाइल होम्स हैं उन सब का जो है वो मीन प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है जी. सो दैट इज़ द पॉइंट एस्टिमेट. सिंपल पॉइंट एस्टिमेट क्या है, आप जस्ट क्या करें कि जस्ट काउंट द सम ऑफ ऑल प्राइस ऑफ ऑल 36 मोबाइल होम, जो पीछे डेटा आपको गिवन था उन सबको जो है वो आप सम कर लीजिए. और उसके बाद जो है वो आप क्या करें, यू जस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ होम्स विच इज़ 36, सो यू विल गेट 63.28. सो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि बेस्ड ऑन द सैम्पल डेटा वी एस्टिमेट the mean price mu of all new mobile homes to be approximately 63.28 thousand. यानी कि 63,280 जो है वो क्या है, मीन प्राइस है. और मीन प्राइस किसका, बेस्ड ऑन द सैम्पल इंफॉर्मेशन वी आर एस्टिमेटिंग मीन प्राइस किसका, पॉपुलेशन का मीन प्राइस. ठीक है, सो अब आप ये बताइए कि इसमें पॉइंट एस्टिमेट में लाजमन देयर मस्ट बी सम सैम्पलिंग एरर. आपने फॉर एग्जांपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं कैलकुलेट की. यूएस पूरा यूएस का डेटा है लेकिन 36 मोबाइल होम से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम सैम्पलिंग एरर. सो तो टू इनकॉर्पोरेट दो सैम्पलिंग एरर व्हाट वी डू, वी फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल को एस्टिमेट करने के लिए भी कई सारे मराहिल हैं.
उसमें से पहला स्टेप ये है कि पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि पॉपुलेशन को तो हम सेंसस नहीं कर रहे, हम सैम्पलिंग की तरफ जा रहे हैं। सो अगर आप इस मेथड में जा रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए, तो पहला स्टेप ये है या पहला मेथड ये है कि सिग्मा अगर नोन है तो क्या होगा, और इसी तरह सिग्मा अगर अननोन हो तो फिर क्या होगा। तो हम पहला स्टेप ले रहे हैं व्हेन सिग्मा इज इक्वल्स टू नोन। हम क्या करने जा रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक सैंपल है जो कि 250 ग्राम का है, ठीक है, 250 ग्राम इसमें फिल हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं 250 ग्राम में एरर्स कितना है, वो एरर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी है, 2.5 ग्राम है। यानी 2.5 ग्राम जो वो थोड़ा या तो ऊपर होगा या 2.5 ग्राम जो वो कम जो वो इसमें मेजर होगा। सो ये जो 2.5 ग्राम है, दिस एक्चुअली अकाउंट्स फॉर दिस सैम्पलिंग एरर। तो अगर ये एस्टीमेट पॉइंट एस्टीमेट आपके पास हो और उस पॉइंट एस्टीमेट के साथ साथ अगर सैम्पलिंग एरर एस्टीमेट हो जाए, तो फिर ये प्लस माइनस करके जो इंटरवल आएगा, तो दैट वुड बी कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इफ़ यू फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसमें एक परसेंटेज होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की एक्यूरेसी की एक परसेंटेज होती है, जिसको हम कहते हैं आपकी 1 - अल्फ़ा, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल में अगर आप 1 - अल्फ़ा जो वो इनकॉर्पोरेट जो करते हैं, तो वो हमें बताता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेक्टिंग योर ट्रू पॉपुलेशन मीन अंडर दिस रेंज, ठीक है, अंडर दिस रेंज। यानी प्लस माइनस 2.5 सैम्पलिंग एरर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो दैट इज़ द कॉन्फिडेंस बैंड, ओके, कि हाउ मच यू पीपल आर कॉन्फिडेंट कि आपका जो है वो पॉपुलेशन मीन जो है वो इस इंटरवल के अंदर क्या करे, लाई करे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेम एग्जांपल, प्राइस ऑफ न्यू मोबाइल होम। Considering the problem of estimating the population mean price of all new mobile homes by using the sample data in the given table, जो previously table में था, let's assume that the population standard deviation of such prices is 7.2 thousand, यानी $7,200 जो है ना वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि नोन है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो इतना है, ठीक है। तो अब क्या करें कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरफ जा रहे हैं। पहला स्टेप तो ये है कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द वेरिएबल एक्स बार, दैट इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन फॉर सैंपल ऑफ साइज 36। ये पार्ट ए वही है जो आप अभी पिछले जो सीरीज़ है जिसमें कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, तो उसमें हम यही काम कर रहे थे कि मीन हम कैलकुलेट करते थे और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते थे। स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या, सिग्मा अपॉन √n। तो हमने ये काम करना है। और सेकेंड पार्ट हम इस टॉपिक से रिलेटेड है, कॉन्फिडेंस इंटरवल यू नीड टू कंस्ट्रक्ट फॉर द पॉपुलेशन फ्रॉम x बार -3 स्टैंडर्ड एरर टू x बार +3 स्टैंडर्ड एरर। तो अब ये जो +-3 स्टैंडर्ड एरर और ये +3 स्टैंडर्ड एरर -3 स्टैंडर्ड एरर, दिस रिप्रेजेंट द सैम्पलिंग एरर, ठीक है ना। सैम्पलिंग एरर, ये जो 3 और स्टैंडर्ड एरर इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आएगा, दैट नंबर इज कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर, सही है। तो अब आइए ये दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट जो कि बिल्कुल सिंपल आपको पता है, जिसमें कि हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सैंपल का साइज़ पता होना चाहिए जो कि 36 है। 36 मोबाइल होम्स का डेटा हमारे पास मौजूद है। सिग्मा हमने भी देखा कि 7.2 अज्यूम किया है। सो सैंपल जो है वो एक सैंपल का मीन हमारे पास है, बट द पॉइंट इज हियर हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना क्या चाहिए होता है, ऑल पॉसिबल सैंपल्स का मीन चाहिए होता है जो कि अननोन है। तो वी कैन जस्ट राइट हियर mu x bar equals to mu, which is, since we don't know the population mean, so that is why we can just write mu x bar equals to mu, ठीक है। अदरवाइज क्या करते हैं हम ये करते हैं सैम्पल मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर पॉपुलेशन का कब होता है, जब whenever we have all possible samples, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, और फिर सबका मीन कैलकुलेट करते हैं और फिर सबके सैंपल मीन का एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द मीन ऑफ द सैंपल मीन।
So mu x bar is what about the mean of the sample mean which is equals to mean of the population. Okay, so ये चीज़ जो है वो हम इस क्वेश्चन में उसको हम जो है वो वैलिड नहीं कर सकते, हम उसको जो प्रूफ नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव ऑल पॉसिबल सैम्पल्स, वी हैव ओनली वन सैम्पल दैट इज अ सैम्पल ऑफ 36 होम्स. तो उसके बेसिस पे हम ये काम नहीं कर सकते. वी कैन जस्ट राइट इट म्यू एक्स बार इक्वल्स टू म्यू. But for the second task, that is the standard error of the variable x bar, we can do sigma x bar का formula क्या होता है? Sigma over root n. Sigma is given 7.2, n is given 36, so we can just find out 1.2 sigma x bar. Okay. So तीसरी information हम यहाँ पे ये बता सकते हैं undoubtedly कि x bar is normally distributed. Why? Because of the central limit theorem. हम ये पढ़ चुके हैं. सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि whenever the sample size is more than 36 है हमारे पास, whenever sample size is more than 30, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि distribution of sample mean always follows normal distribution. In other words, for sample of size 36, the variable x bar is normally distributed with mean mu and standard deviation 1.2. ठीक है, तो हम ये बात जो है ना वो इस तरीके से पहले पार्ट की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? कंस्ट्रक्ट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन फ्रॉम एक्स बार -3 स्टैंडर्ड एरर टू एक्स बार +3 स्टैंडर्ड एरर. देखिए, इसमें मैंने एक फिगर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है कि फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंस इंटरवल हम निकाल रहे हैं इस बेस्ड ऑन दिस सैम्पल 36 सैम्पल का साइज़ है. तो इस 36 सैंपल के लिए जो हमारे पास वो आ रहा है सैंपल मीन आ रहा है एक्स बार, ये 63.28 हमने कैलकुलेट किया है. ठीक है, तो 63.28 जो पॉइंट एस्टीमेट आपके सामने अभी कैलकुलेट हुआ था 63.28. अब इस पॉइंट एस्टिमेशन में हमने बात की कि ये चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं. तो चांसेस ऑफ एरर क्या है? हो सकता है कि आपका जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इस 63 से माइनस कर दें 3 स्टैंडर्ड एरर. तो हो सकता है कि इस इंटरवल में इसका लोअर लिमिट हो, मैं भी +3 स्टैंडर्ड एरर. तो ये जो दो पॉइंट्स हैं दैट इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड द अपर लिमिट ऑफ द कॉन्फिडेंस. ठीक है, सो +-3 स्टैंडर्ड एरर से मुराद ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड एरर जो कि 1.2 हमने कैलकुलेट किया है, इफ़ यू मल्टीप्लाई द 1.2 बाई 3 तो यू विल गेट 63 - 3 टाइम्स 1.2 क्या है 59.68. ठीक है, इसी तरह अपर लिमिट क्या होगी +3 टाइम्स 1.2 66.88. सो इसका मतलब ये है कि पॉइंट एस्टीमेट तो 63.28 है और इसमें जो चांसेस होंगे वो क्या होगा? हो सकता है कि भाई 3 टाइम्स 1.2 टाइम्स जो है वो बिलो हो, या हो सकता है 3 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर अबव हो. तो इसका मतलब बिलो का मतलब 59.68 और अबव का मतलब 66.88. तो हम एक कॉन्फिडेंस इंटरवल से ये जो है वो डिपिक्ट कर सकते हैं कि पॉइंट एस्टीमेट जो कि 63.28 बता रहा है मे बी उससे ऊपर नीचे हो. तो कितना ऊपर नीचे होगा वो ये होगा, कितना ऊपर नीचे होगा? हो सकता है कि 59.68 हो कम से कम, और ज़्यादा कितना होगा 66.88. नाउ वी आर कॉन्फिडेंट विद आवर ट्रू पैरामीटर एस्टिमेशन कि आपका जो पॉपुलेशन है वो क्या हो, वो इस 59,000 से लेके, क्योंकि ये उसका डेटा है आपका आपके क्या नाम है मोबाइल होम्स का डेटा है. तो मोबाइल होम की जो प्राइसेस है वो कितनी है? मोबाइल होम की जो प्राइस है वो एवरेज प्राइस कितनी है 63,280. तो 63,280 से कितना डेविएट हो सकता है कि 59,000, ठीक है, 59,680 से लेके 66,880 तक. तो ये इतनी जो है ना वो डेविएशन हो सकती है. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से हम एक जो वो डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके अंदर हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो लाई करे इस इंटरवल के अंदर. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट क्या प्रोवाइड करता है हमें? इट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ नंबर्स along with a percentage confidence that the parameter lies in that range. ठीक है, तो हमें दो चीज़ें देता है. एक हमें रेंज दे रहा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, एक रेंज ऑफ इंटरवल दे रहा है,
और दूसरा साथ साथ परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की कुछ टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल CI रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसको क्या कह रहा है, एन इंटरवल ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पॉइंट एस्टीमेट ऑफ अ पैरामीटर। तो और याद रखें, कॉन्फिडेंस इंटरवल जब भी हम एस्टीमेट करेंगे हमेशा कहाँ से एस्टीमेट होता है, पॉइंट एस्टीमेट से होता है। यानी एक x बार जो कि सैंपल की इंफॉर्मेशन है उसमें प्लस माइनस होता है, क्या, सैम्पलिंग एरर प्लस माइनस होता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि 3 टाइम्स ही हो, 3 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर दिए तो एक क्वेश्चन का पार्ट था, तो इसको हम फिर जनरलाइज करेंगे, अभी आपके सामने डिस्कस होगा कि कैसे जनरलाइज करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल से क्या मुराद है, द कॉन्फिडेंस वी हैव दैट द पैरामीटर लाइज इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट इज दैट द कॉन्फिडेंस इंटरवल कंटेन्स द पैरामीटर। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर दो चीज़ें हो गई, एक कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, ठीक है, तो पैरामीटर्स जो वो किस इंटरवल में, अपर लिमिट लोअर लिमिट, दैट इज़ द कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, अपर कॉन्फिडेंस लेवल लोअर कॉन्फिडेंस लेवल आप ऐसे कह सकते हैं। और फिर दूसरा क्या, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट, द कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, इन दोनों चीज़ों को, कॉन्फिडेंस लेवल को और कॉन्फिडेंस इंटरवल को, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट कहते हैं, ठीक है। तो for example, a confidence interval for a population mean depends on the sample mean, which in turn depends on the sample selected. For example, suppose the prices of 36 mobile homes sampled were shown in the table. अब ये एक नया डेटा, फॉर एग्जांपल एक नया जो वो 36 सैम्पल्स हैं जिसका मीन कितना है, 65.83 है, ठीक है। तो इस 65.83 से जब आप उसको एक नया इंटरवल निकाल रहे हैं, एक्स बार माइनस 2.4 और एक्स बार प्लस 2.4, तो ये क्या आ रहा है, 63 से लेके 68 तक आ रहा है। अब ये जो प्लस 2.4 माइनस 2.4 है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास सैम्पलिंग एरर था दैट वाज 1.2, तो 2.4 को 1.2 से अगर आप डिवाइड करें तो ये आ रहा 2, तो 2 का मतलब है 2 टाइम्स जो है ना वो स्टैंडर्ड एरर। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 3 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर निकाला था, अब यहाँ पे ये क्या है, ये 2 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर। व्हेनेवर 2 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फिक्स है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होगा ना, व्हेनेवर 2 टाइम्स, सो दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 95.44%, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है 2% के लिए, 2 स्टैंडर्ड एरर के लिए, 2 स्टैंडर्ड एरर के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कितना होता है, 95.44। तो याद रखें, जब भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं ना, तो दो चीज़ें हमें मिलती है। एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल कि कितना आप कॉन्फिडेंस है, जो परसेंटेज की फॉर्म में होता है, और एक होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल के एस्टीमेट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। तो लेवल कैसे डिज़ाइन होता है, कॉन्फिडेंस लेवल ये डिज़ाइन होता है स्टैंडर्ड एरर को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस स्टैंडर्ड एरर को पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। और अभी ये जो -2.4 है, -2.4 कैसे आएगा, इफ़ यू मल्टीप्लाई द स्टैंडर्ड एरर दैट इज़ 1.2, स्टैंडर्ड एरर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है 63 से लेके 68 तक, ठीक है, ये किसके लिए है, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज 2। अब ये जो कोफिशिएंट है कि कभी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कोफिशिएंट सेट करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, यानी जो परसेंटेज है वो कितनी है। आपके परसेंटेज जो है वो आपकी परसेंटेज जो है वो 95% है, 99% है, 66% है, कितना परसेंट है, ये डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्फिडेंस, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर। इन स्टैंडर्ड एरर को किस फिगर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बताएगा। तो एक रूल ऑफ थंब है, ये आप याद रख लें, रूल ऑफ थंब के 68.26% सही है, एक 68 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए होता है, 95.44 2 के लिए होता है, और 99.74 किसके लिए होता है, 3 के लिए होता है। तो ये रूल ऑफ थंब है कि ये जो आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सिग्मा अपॉन रूट एन, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो 1 स्टैंडर्ड एरर 68.26, 2 स्टैंडर्ड एरर 95.44, 3 स्टैंडर्ड एरर 99.74। तो इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर पॉइंट एस्टीमेट में से 1 स्टैंडर्ड एरर
ऐड एंड सेपरेट होगा, सो तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना बनेगा वन स्टैंडर्ड एरर के लिए? इफ द सैम्पलिंग एरर, ये है सैम्पलिंग एरर, वन स्टैंडर्ड एरर की सैम्पलिंग एरर है तो कॉन्फिडेंस लेवल वुड बी 68.26। टू स्टैंडर्ड एरर की अगर सैम्पलिंग एरर है तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा? जितना आप जो वो स्टैंडर्ड एरर का जो कोफिशिएंट है वो आप जितना इंक्रीज कर रहे हैं, द कॉन्फिडेंस लेवल विल आल्सो इंक्रीज मीन लाइकवाइज। तो टू स्टैंडर्ड एरर इफ द सैम्पलिंग एरर का क्या कोफिशिएंट जितना इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपना रेंज इतना इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेंज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी यू आर इंक्रीजिंग, सो दैट्स मीन्स योर कॉन्फिडेंस लेवल विल आल्सो इंक्रीज विच इज 95.44। फॉर थ्री स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है? 99.74। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रूल ऑफ थंब जो कि हम इसको फॉलो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, मैं इस पे आपको एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर देना चाह रहा हूँ कि आप फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की टू स्टैंडर्ड एरर की, तो टू स्टैंडर्ड एरर से क्या मुराद है कि आपका जो पॉइंट एस्टीमेट है वो पॉइंट एस्टीमेट यहाँ पर है मीन, और मीन में से आप कितना स्टैंडर्ड एरर माइनस कर रहे हैं? -2 सिग्मा ओवर रूट n प्लस 2 सिग्मा ओवर रूट n। ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन कि आपका जो टू स्टैंडर्ड एरर से मुराद है 95.44 प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी। जिसका मतलब ये है कि ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है 95.44% कॉन्फिडेंस लेवल है, और अल्फ़ा जिसको हम कहते हैं वो ये एरिया है जो कि कवर्ड नहीं है, जो शेडेड नहीं है, अनशेडेड एरिया है, ये आपका अल्फ़ा है। यानी कि आपका जो पैरामीटर है पॉपुलेशन पैरामीटर वो इस अनशेडेड एरिया में आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.0228, और इससे बड़ा हो, इस अपर लिमिट से बड़ा हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.0228, और लोअर लिमिट से छोटा हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 0.0228। इन दोनों को सम कर लें तो ये ऑफकोर्स 0.0459 या अप्रॉक्सीमेटली 0.5 यानी 5%, 0.055% के अप्रॉक्सीमेट है। तो अगर इंटरवल बीच का एरिया 95% ले लें तो जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो क्या है? 5% है। सो व्हाट डज इट मीन कि आपका जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके इस इंटरवल से बड़ा हो तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 5% है, और इस इंटरवल के अंदर लाई कर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95% है। इस यहाँ से अब हम आपको जो ना वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूले की तरफ लेके चल रहे हैं कि नोटेशंस क्या होंगी। हम बात करते हैं ना 95%, 99%, 68%। अब ये परसेंट को अगर हम नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा? 100 टाइम्स 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा रिप्रेजेंट करेगा कि वो जो आउटसाइड रीजन है वो कितना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इधर मेरा अल्फ़ा क्या है? ये अल्फ़ा जो कि 5% अप्रॉक्सीमेटली वो दोनों तरफ डिवाइडेड है अल्फ़ा बाई 2 यानी 0.0228 अगर 95% है ना तो 0.0228 इस तरफ है, 0.0228 इस तरफ है, तो बीच का एरिया कितना है? 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये 95.44 को हम क्या कहते हैं? 1 माइनस अल्फ़ा। सो अगर 95% अज्यूम कर लो तो 1 माइनस अल्फ़ा 95% है तो अल्फ़ा क्या होगा? 5% होगा। ठीक है। और इसी तरह मैं नोटेशन की फॉर्म में आपको बताऊं तो ये नोटेशंस क्या है? म्यू जो कि पॉइंट एस्टीमेट है प्लस z अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे ये टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं z अल्फ़ा बाई 2। z यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा उस स्कोर को जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। 1 स्टैंडर्ड एरर, if 1 standard error then z equals to 1, 2 standard error means z equals to 2, 3 standard error means z equals to 3। ठीक है। तो ये z की वैल्यू एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आपका जो परसेंटेज है वो कितना है, प्रोबेबिलिटीज कितनी है। ठीक है। और z आप z से फेमिलियर है, z जो है वो क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैटिस्टिक्स है। तो z को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। अब आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जब वो 20 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं फॉर द मीन प्राइस ऑफ ऑल मोबाइल होम ईच बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ 36 न्यू मोबाइल होम। ठीक है। तो सेम वही डेटा हम ले रहे हैं। हम ये साथ इसमें कह रहे हैं कि ये पहला सैंपल जो कि 36 डिफरेंट मोबाइल होम का एवरेज है। इसी तरह अब ये दूसरा सैंपल है जो कि दूसरे 36 या हो सकता है उसमें से हमने एक कम कर लिया, दूसरा ऐड कर लिया, तो नया 36 सैंपल, नया सैंपल बन गया। ठीक है। जिसका मीन कितना आ रहा है? 64।
एक और सैंपल है जिसका मीन 64, थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल. सो हाउ मेनी सैंपल्स वी हैव? 20 सैंपल्स का डेटा है. तो ये एक एक्स बार रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सैंपल का मीन है, दूसरे सैंपल का मीन है, तीसरे सैंपल का, अप टू सो ऑन. और हर सैंपल से हमने एक एक कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट किया है, 63 से लेकर 67 तक, 61 से लेकर 66 तक एंड सो ऑन. ठीक है. और ये हमने इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल, फॉर एग्जांपल पहला 63 से 67 तक है, तो ये 63 से लेके 67.85 तक जो ना ये आपका पहला कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया. फिर इसी तरह दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल फ्रॉम 61 से लेके 66 तक, तो ये 61.81 से लेके 66.61 तक ये दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया एंड सो ऑन. इस तरह हमारे पास 20 सैंपल्स के 20 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कैलकुलेट हो गए. ठीक है. ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ. हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि पॉइंट एस्टीमेट इसका कितना है, 65.45 है. इसका पॉइंट एस्टीमेट है 64.21. दीस आर द पॉइंट एस्टीमेट. अच्छा, पॉपुलेशन मीन कहाँ खड़ा हुआ है? 65 पर है. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन इज नोन हियर नाउ. पॉपुलेशन मीन क्या है? 65 है. तो अब आप ये देखें कि हर सैंपल, इफ़ यू आर डीलिंग विद द पॉइंट एस्टीमेट, तो पॉइंट एस्टीमेट का मतलब ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट एस्टीमेट है. तो पॉपुलेशन कहाँ पर है? 65 पर है. ये सैंपल जो है वो कहाँ एस्टीमेट कर रहा है? ये एस्टीमेट कर रहा है 65.45, थोड़ा ज़्यादा एस्टीमेट कर रहा है. ये थोड़ा कम एस्टीमेट कर रहा है. ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है. ये बिल्कुल जो है ना वो एज के ऊपर है. ये थोड़ा कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया. तो आउट ऑफ 20 सिर्फ एक सैंपल ऐसा है जिसमें कि पॉपुलेशन 65 पर है, लेकिन सैंपल बिल्कुल आउट है. कहाँ चला गया? 67.73 के ऊपर है. ठीक है. और अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो ये सिर्फ 65 के ऊपर सिर्फ पॉइंट एस्टीमेट एक और दो सैंपल्स ऐसे हैं जो कि 65 के ऊपर तकरीबन आ रहे हैं. बाकी सारे के सारे क्या हैं? डेविएट हो रहे हैं. लेकिन अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो 95% जो है वो जो कॉन्फिडेंस है, तो आउट ऑफ 20 सिर्फ एक सैंपल ऐसा है, एक इंटरवल ऐसा है जो कि आउटसाइड द रेंज है. अदरवाइज 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल आर इनसाइड द रेंज. ठीक है. सो दिस फिगर रिवील्स दैट म्यू लाइज इन द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इन 19 ऑफ द 20 सैंपल्स. ठीक है. तो 19 सैंपल्स में क्या है, तकरीबन आपका जो पैरामीटर है वो लाई कर रहा है. ठीक है. सिर्फ एक ऐसा है जिसमें कि आउट हो गया है. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्कुल क्या हो गया? आउट हो गया. So, if instead of 20 samples we simulated 1000, we would probably find that the percentage of those 1000 samples for which mu lies in the 95.44 confidence interval would be even closer to 95.44%. So, this is how we find out the confidence interval. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे इस जो है वो फिगर्स में आपको समझ आ रही होगी कि पॉइंट एस्टीमेट क्या है. ये जो ग्रीन है ये सारे के सारे क्या है? पॉइंट एस्टीमेट है. कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? ये जो आपका पूरी लाइन है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है. और एक सैंपल से जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है वो ये आ रहा है. दूसरा सैंपल चेंज कर दिया आपने, माहौल चेंज कर दिया, सैम्पलिंग नहीं आ गई, कॉन्फिडेंस इंटरवल चेंज हो गया. लेकिन लॉजिक क्या है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के चेंज होने से आपका जो ट्रू पैरामीटर है विच इज 65 वो फिर भी इसी कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है. कॉन्फिडेंस सैंपल चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी चेंज हुआ, लेकिन इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपका पॉपुलेशन पैरामीटर विच इज 65 वो मौजूद है. और वी आर हाउ मच परसेंट कॉन्फिडेंट? 95% कॉन्फिडेंट कि आपका पैरामीटर होगा. पैरामीटर मौजूद है, पैरामीटर मौजूद है. सैंपल 5 पैरामीटर मौजूद है, सैंपल 6 में भी मौजूद है, 7 में भी मौजूद है, 14 तक सैंपल्स में पैरामीटर मौजूद है. 15 ऐसा था जिसमें पैरामीटर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल में नहीं आया. 16 में भी है, 17 में भी है, 18 में भी है, 19 में भी है, 20 में भी है. इसका मतलब क्या है कि आप अगर 1000 भी सैंपल सिमुलेट कर लें तो 1000 में क्या होगा? 954 जो आपके सैंपल्स होंगे उसमें क्या होगा? आपका 954 सैंपल्स में द पैरामीटर वुड लाई. हाउएवर ओनली 4.5% जो वो 4 या 5 सैंपल्स ऐसे होंगे जो कि आउटसाइड होगा. ठीक है. 4 या 5
क्या होंगे, आउटसाइड होंगे। और 95 या अगर 1000 है तो 950 जो सैंपल्स हैं, 950 सैंपल्स में क्या होगा, 950 में इनसाइड होगा और 50 ऐसे सैंपल्स होंगे जिसमें के प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसमें कि हो सकता है आपके पैरामीटर जो है वो आउटसाइड द रेंज हो। ठीक है।